Good morning, students. Today we are going to start chapter 5 of your history books, which talks about the rulers and buildings. In this chapter, we are going to understand the engineering skills and construction which occurred in the medieval period or before that too. We will understand the temple construction in early 11th century. Then what was the reason for building temples, mosques and tanks, and we will also see if there were any other architectural structures which are there apart from temple, mosque and tanks. And then we have a huge history of temple destructions in India, because we have gone through many invasions. So why were like temples destroyed, and what was the reason behind such destructions? Again, garden tombs and forts were the main features of architectural structures. So we will understand about the patterns which were used in the construction of gardens, tombs and forts. And then there is an intermingling of architectural style all across the country, like in various regions and empires. We will try and understand how this intermingling of architectural happen in India. So to begin with your chapter, the chapter starts with an example of like a historical building which is known as Qutub Minar. And in this first balcony of the Qutub Minar, we will be like focusing. Qutbuddin Aibak had this construction around 1119. And in the pattern which is given on the figure over here, you will see that under the balcony it is like followed by small arches and geometrical designs. So do you know like kya inke piche kahan se was the inspiration? These were in Arabic or what? And how these arches were constructed? What kind of technology was used to make these curves and these angles? And then how inscriptions which has been embodied was placed over there. So these things we will go and learn in detail. You can, in the picture you can see that you can read the Urdu inscription over here. Like Urdu में बहुत कुछ लिखा हुआ है. Qutub Minar was 5-story height. The band of inscription you see are under its first balcony. The first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and the rest by Iltutmish around 1229, right? And it was also damaged by lightning and earthquakes, and repaired by Alauddin खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फारूक शाह एंड इब्राहिम लोदी. लाइक कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, कौन प्रिजर्व कर रहे हैं एक टाइप की पर्टिकुलर बिल्डिंग को, और कौन डिस्ट्रॉय करते थे. दिस ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. Now what we need to understand that between the 8th and 18th century, kings and officials they used to build two kind of structures. The first were forts, palaces, garden, residence and tomb. Safe, protected and grandiose palaces of rest in this world. These are for like kings or the emperors. समझ रहे हैं आप? ये जो पैलेसेस बन रहे हैं, गार्डन बन रहे हैं, रेजिडेंस बन रही हैं, टॉम बन रहे हैं, ये सब किसके लिए बन रहे हैं? ये किंग या रूलर्स के लिए बन रहे हैं, राइट? और बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाए जाते थे. लाइक अगर आप if you see in the adjoining dialogue box, you will see how much labor was used for building the Agra fort. It was built by Akbar, and the Agra fort required 2,000 stone cutters, 2,000 cement and lime makers, and 8,000 laborers. So see the manpower which has been used at that time to construct such huge establishment. This was the first type of structures, and the second type of structures were like tanks, temples, mosque, well, and bazaars. Why these were created? These were specially created for the subjects of the king. Subjects of the king मतलब जो प्रजा होती थी, जो लोग जिन पे वो राज करते थे, बेसिकली ये उनके लिए बनाए जाते थे. बिकॉज द किंग वर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, कि प्रजा का ध्यान रखना है, उनके कंफर्ट को देखना है, उनको यूजफुल उनकी चीजें बनानी है, ताकि लोगों का प्यार और प्रेज और सपोर्ट मिल सके. सो ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी
to build temples, mosques, and walls. This is done to to show the care, the concern of the king toward the people, and also so that the trade and other activities can flourish in their empire, and people can willingly and happily pay the taxes and all. लेकिन जो आम लोग होते थे वो भी अपने लार्ज मेंशंस या वैलीज बनाते थे और उसके अंदर रहते थे. जब हम जाते हैं हिस्ट्री में, कहीं हम विजिट करते हैं, पैलेसेस वगैरह देखते हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहर में आपको या और भी राजस्थान के अंदर इतने मार्वलस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं. कभी कभी हमें जो मतलब आम जनता की तरफ से हवेलियां भी देखने को मिलती हैं जो कि लोकल मर्चेंट्स या उन्होंने बनाई होती हैं. वो भी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होता है ऑफ द आर्किटेक्ट विच वॉज प्रिविलिंग इन दैट पर्टिकुलर area or regions. So if I come about the engineering skills and construction in medieval period, there were like two basic kind of architectural structures available over there. Like, और जितने भी monuments हमारे पास हैं, they provide an insight into the technology used for construction. उस टाइम किस तरह की टेक्नोलॉजी होती थी. To be precise, there are two style of आर्किटेक्चर एट दैट टाइम, दैट इज ट्रिबेट और जिसको कॉर्बेल्ट भी बोलते थे, एंड द सेकेंड वॉज लाइक आर्कुलेट. सो if we talk about superstructure is the part of the building above the ground floor, and this can be made by placing wooden beams or a slab of stone across four walls, right? And but the task became difficult if you want to make a large room with an elaborate superstructure, और उसके लिए बहुत ही sophisticated skills थे. And you will see as we will go through this chapter that what kind of architectural marvels we were having in that century, in those periods when the technology was not set to be so developed. हमें ऐसा बोला, हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी उस टाइम ये क्रेन्स नहीं थी, ये बिल्डिंग मटेरियल्स नहीं थे, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. तो हाउ दे वर लाइक सक्सेसफुल इन मेकिंग सच अ सुपर गुड आर्किटेक्ट, जो आज भी मिसाल है, जिसको आज भी देखा जाए तो it's a wonder in itself. So we will understand about all these things. So as I told you about the two type of style of architects, let's first concentrate on ट्रेबेट और कॉर्बेल्ट. इसके अंदर क्या होता था, between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to building. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam जाती थी across two vertical columns के, एक horizontal beam डाली जाती थी. लेकिन अब जो roofs, doors और windows थे वो बढ़ने शुरू हो गए, उनमें add-ons होने शुरू हो गए, और इस स्टाइल को जो था वो ट्रिबेट या कॉर्बेल्ट बोलते थे. फिर between 8th and 13th century, the tribate style was used in the construction of temples, mosques, tombs, in building attached to large stepped well. बाउलीज बनती थी. बाउली किस लिए बनती थी? they were like water resource, और water जो था बहुत ज्यादा जरूरी होता था किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि ऑल देयर एक्टिविटीज हैज टू बी मीन्स वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी. सो ये बॉलीज जो थी, एक तरह से पानी जो आपका रेनी सीजन होता था, वो स्टेपवेल्स, बॉलीज बहुत सारी देखने को मिलती है, स्पेशली ऐसे राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ कर थ्रू आउट द ईयर देयर आर नॉट मच रिवर्स फ्लोइंग अक्रॉस द स्टेट. सो दे हैव द सिस्टम ऑफ बॉलीज टू स्टोर द वाटर, सो दैट कैन बी यूज्ड इन द later on period. Monsoon में तो it's okay, you are getting rain, you are getting water, local rivers can also लैक है ना रिवर्स का, इस वजह से बाउलीज बहुत देखने को मिलती है. एंड यू हैव वंडरफुल बाउलीज इन राजस्थान इटसेल्फ. ओके, तो दिस वाज द tribate structure, and then the other technology was the arculate structure, and you can see figure 5.8 to understand what the arculate structure was. In this, the weight of the superstructure above the door and window was sometimes carried by the arch. बना दी जाती थी. आर्च जो थी, जो आर्च होती थी, वो सेंटर का जो वेट होता था सुपरस्ट्रक्चर जो बेस है आग पे, उन पे ट्रांसफर करता था, राइट. और इस टाइम पे लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट विच व्हेन मिक्स्ड विद स्टोन चिप हार्डन हो जाता था, कॉन्क्रीट हो जाता था, और स्ट्रक्चर जो थे इजिली और फास्ट तरीके से बन जाते थे. सो दीज वर द टू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स विच वर यूज्ड ड्यूरिंग दिस एरा. नाउ
let's see two examples of two very beautiful temples have been given on the page number 62, and this page talks about the temple construction in the early 7th century. The one is the Kandhariya Mahadev temple, which is dedicated to Shiva, which was constructed in 1999 by King Nangadeva of the Chandela dynasty. और आप प्लान देखिए, आपको ये एक तरफ तो बिल्कुल टेम्पल की पिक्चर है और फिगर 3.b इज शोइंग द प्लान. यू सी what kind of wonderful art, and like it's my passion also. I am more into understanding the ancient temples which were being constructed in different states of India, and as and when I visit a new temple site, or I got to understand it through the whatever sources are available, I'm like surprised what kind of technology they were using, what kind of time technology. even जो सन है उसका कितना वंडरफुल यूज करके बनाया जाता था कि और मीन्स मार्वलस आर्किटेक्ट एंड वेरी वेरी साइंटिफिक. तो आप इस टेम्पल में भी देखेंगे, इट इज कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स अक्रॉस द कंट्री. एंड इसके अंदर आप देखिए, प्लान देखिए, द ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द महा हॉल, जिसको महामंडपा बोला जाता था, जहां पर डांसर्स डांस परफॉर्म करते थे ड्यूरिंग द वेरियस फेस्टिवल्स. एंड देन दिस टेम्पल हैव गर्भगृह. गर्भगृह वाज द प्लेस वेयर द चीफ deity was kept in the main sharing. This was a place of ritual worship where only the king, his intimate family and priests were gathered. The Khajuraho complex contained royal temples were common, and where commoners were not allowed. The temple were decorated by elaborated crafted sculptures. Means if you see any temple, एक एक दीवार पर, एक एक स्तंभ पर इतनी ब्यूटीफुल like स्कल्पचर्स है कि माइंड ब्लोइंग. जस्ट इन दो टेम्पल्स को तो आई विल सजेस्ट जस्ट गूगल देम आउट एंड सी द आर्किटेक्ट, सी देयर इमेजेस, रीड अबाउट हाउ दीज वर मेड. यू विल नो हाउ आवर इंडियन society was so talented through these temples. The second temple we need to talk about was the Raja Rajeshwar temple, which is at Thanjavur in the down south, and it had the tallest shikhar amongst the temple of this time. And how on the tomb there is like 90-ton stone which is like on the shikhar, and it is still like a very surprising thing how without the lifts and all they have like placed this 90-ton stone on the top of the टेम्पल. कंस्ट्रक्शन के बाद ही टेम्पल पे वो 90 टन का पत्थर रखा गया होगा. तो वो किस तरह से रखा गया था, क्रेन्स तो होती नहीं थी. तो मतलब ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि इसके साथ एक इंक्लाइंड जो है पाथ बनाया गया था, और एलिफेंट्स की हेल्प से इसको स्टोन को जो है रोल करके उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से और टॉप तक ले जाया गया था और फिर रेस किया गया था इसको. सो सी मतलब दिस इज लाइक वेरी वेरी यू नो सरप्राइजिंग कि हाउ दे वर पॉसिबल टू. और ये जो पत्थर है दैट इज मेड फ्रॉम एंटायरली ग्रेनाइट, यू नो. तो it's very wonderful like architectural structure of that period, and I wish कि आप इसको गूगल करके और बनाएं. Now when we have seen these two tombs construction, let's understand why the reason for building temples earlier. और फिर जब invasions हो गया, invaders आ गए आपके, मुगल्स का हो गया, तो उनको क्या जरूरत थी मॉस्क वगैरह बनाने की. What is the psychological reason behind that? Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. And above that they were like used to demonstrate the power, wealth and devotion of the king or emperor who has constructed it. Like take the example of Rajarajeshwara temple. एंड इंस्क्रिप्शन जो हमें वहां पे लिखा राइटअप्स मिलते हैं, मेंशन दैट इट वाज बिल्ड बाय किंग राजा राजादेव फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजवरेश्वरम. राजा राजेश्वरम जो थे उनके गॉड थे, और उनके लिए टेम्पल बनवाया था राजा राजा देव ने. आप देखो नाम में कितने रिजेम्बलेंस है. क्यों रूलर के नाम में रिजेम्बलेंस होती थी गॉड के नाम के साथ? क्योंकि वो अपनी प्रजा के लिए भगवान स्वरूप उसको एक इम्बाइब कर दिया जाता था कॉमनर के माइंड में कि ये द किंग इज इक्वलेंट टू द गॉड, लाइक ही इज एज स्पीशियस एंड ही वांटेड टू, किंग आल्सो वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड. सो
to the rituals of worship in the temple, one god Raja Rajadev honored another Raja Rajaveshwar, यानी जो थे भगवान जो थे राजा राजवरेश्वरम को, उनको जो प्रजा के भगवान थे राजा राजादेव वो पूज रहे थे, ऐसा दिखाया जाता था, राइट। इसके अपार्ट जो मुस्लिम सुल्तान्स और बादशाह होते थे, जिनको बादशाह बोलते थे, दे डिडंट क्लेम टू बी इन क्रिएशन ऑफ द गॉड। वो गॉड से ऐसे अपने आप को नहीं कहते थे कि हम भगवान हैं या उनके कुछ हैं, वो अपने आप को शेडो ऑफ गॉड्स बोलते थे। और एक ऐसी ही इंस्क्रिप्शन जो कुआत अल मॉस्क में मिलती है वो ये बोलती है कि गॉड चोज like Alauddin as a king because he had the quality of Moses and Solomon, the great lawgivers of the past, राइट। वो खुदा से वो भी अपने आप को जोड़ते थे। तो जितना बड़ा टेम्पल होता था, द लार्जेस्ट टेम्पल लाइक वाज उतना ही, जितना लार्जर द टेम्पल उतना ही ज्यादा राजा जो था इन्फ्लुएंशियल था, उसकी पावर को वो डिपिक्ट करते थे, राइट। और इस तरह के टेम्पल्स बना के वो अपनी प्रभुत्ता जिसको कहते हैं ना, वो दिखाने की कोशिश करते थे। और जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, प्रोवाइडेड रूलर्स वर द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद द गॉड, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंजेस के टाइम पे था। रूलर्स जो थे ऑल्सो ऑफर्ड पैट्रोनस टू द लर्न एंड पॉयस, जो पीपल होते थे उनको बहुत ज्यादा अच्छे से रखते थे, क्योंकि दे वर द पर्सन हु वर राइटिंग हिस्ट्री। जो उन्होंने टेम्पल्स बना दिए वो तो सालों हजारों सालों बाद तक उनके बारे में दुनिया को बताते रहेंगे, लेकिन जो लर्नड पीपल थे, आपने वी हैव स्टडीड दिस थिंग आल्सो इन द अर्लियर चैप्टर, कि लर्नड पीपल जो थे उनको बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, बिकॉज दे वर हु वर राइटिंग अबाउट देम एंड दे वर थ्रू देम दे विल गेट द फेम एंड दे विल बी लाइक नोन इन द हिस्ट्री लेटर ऑन, राइट। अब किंग जो था उसको भगवान की तरह माना जाता था, और उसको उसके लिए मतलब प्रजा के लिए पानी जो है अवेलेबल कराना, दैट वाज वेरी वेरी बेसिक थिंग, बिकॉज यू नो विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ, नो एक्टिविटी कैन गो ऑन। और अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को एक पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स में उन्होंने स्पेसिफिकली सिखाया, बताया कि लाइक द पर्शियन टर्म आबाद मीन्स पॉल्यूटेड एंड प्रॉस्परस, एंड आबादी मतलब जनसंख्या होती है, वो फ्लोरिशिंग तभी हो सकती है जब वो आब, दोनों में आब आ रहा है। आब शब्द का मतलब होता है वाटर, तो पानी के साथ ही जो है आपकी जनसंख्या आबादी फ्लरिश कर सकती है, प्रॉस्परस हो सकती है, आबाद हो सकती है, यानी खुश हो सकती है। तो वाटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। और सुल्तान इल्तुतमिश वाज लाइक ही हैज वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्व जस्ट आउटसाइड दिल्ली खुलना। आपने पढ़ी है दिल्ली खुलना के बारे में, और उन्होंने एक बहुत बड़ा जो था वाटर रिजर्व बनाया था। इट वॉज कॉल्ड हज सुल्तानी या किंग्स रिजर्व, जिससे कि क्या होता था, ये राजा जो थे हमेशा टैंक्स और रिजर्वर्स बनाते रहते थे, बिग और स्मॉल, किस लिए, फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल। समटाइम दीज टैंक्स एंड रिजर्वर्स वर पार्ट ऑफ टेम्पल, मॉस्क एंड गुरुद्वारास, ताकि लोग जहाँ से है वहां पर पानी जो है उसके आसपास जो वो लोग आबाद रहे, खुश रहे, बिकॉज वाटर नहीं है तो देयर इज नो लाइफ, देन पीपल विल लाइक मूव ऑन टू सम अदर प्लेस। सो पानी का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दिस वॉज वाई दे कंस्ट्रक्टेड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड वाई दे हैव कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स। जस्ट अपना उनको एक स्टेट्रा भी मेंटेन करके रखना पड़ता था, उस चीज को, उनके स्टेटस को एम्फेसाइज करने के लिए, उनकी एक छाप छोड़ने के लिए, इस तरह से वो ये सब चीजें जो थे वो बनाते थे। नाउ वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड? बेसिकली एक किंग अपनी वन किंग बिल्ड दिस काइंड ऑफ टेम्पल्स टू शो हिज superiority, his power, his wealth, and when he was like attacked by another kingdom or like by some other king, so the main targets will be the buildings which are displaying his like power. So obviously these buildings were the temples at that time. तो क्या होता था कि एक राजा ने दूसरे राजा को जब हराना है या उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो ऐसी बिल्डिंग्स को भी वो डिस्ट्रॉय कर देते थे। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं हिस्ट्री में, लाइक इन योर बुक इट इज टॉकिंग अबाउट द अर्ली 9th century वेयर पांड्यन किंग श्री वल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका गए, और वहां के जो सेना वन थे किंग, उनको उन्होंने हराया। एंड जो एक क्रॉनिकल है जो कि हिस्ट्री लिखते हैं,
किट्टी, उन्होंने अपनी बुक में, अपनी राइटिंग में लिखा है कि ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, जितनी भी वैल्यूएबल्स थी वो वहां से ले ली, और स्टैच्यू ऑफ बुद्धा विच वॉज एंटायरली मेड ऑफ गोल्ड इन द ज्वेल पैलेस एंड द गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनेस्ट्री, उन सबको उन्होंने कब्जा कर दिया और अपने साथ वापस ले आए। राइट, ही वॉज अ इंडियन किंग, और श्रीलंका पे उसने ऐसा अटैक करके और वहां से वो बुद्धा का गोल्डन स्टैच्यूज वगैरह ले आया। लेकिन लेटर ऑन द ब्लो ऑफ द प्राइड ऑफ द सिंघानीज रूलर्स, ये जो श्रीलंका के रूलर्स थे, जो नेक्स्ट सिंघानी रूलर हुआ सेना सेकेंड, he ordered his जनरल to invade मदुरई, the capital of पांड्यास, और इन्वेड करके हरा के उन्होंने अपना वो गोल्ड स्टैच्यू जो था बुद्धा का वो दोबारा से रिस्टोर किया, अपनी जगह पे प्लेस किया, तो जस्ट टू शो कि हम दोबारा से पावर में आ गए हैं। तो एक दूसरे के टेम्पल डिस्ट्रक्शंस किस लिए थे? ये शो करने के लिए कि वी आर मोर पावरफुल। दिस वाज जस्ट लाइक दिस। एंड सिमिलरली इन द अर्ली 11th century द चोला किंग राजेंद्र I built a Shiva temple in his capital, filled it with prized statues, San Pedrilics from Chalukyas, Ganesha statues, मतलब अलग अलग जगहों से उसको जीत के जो लाया था वो चीजें उसने वहां पर प्लेस की। अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो इन्वेडर्स आए उसमें सबसे ज्यादा मोहम्मद गजनी की हम बात करते हैं। लाइक इसने सोमनाथ टेम्पल को बहुत बार इसने इन्वेड किया। जस्ट सर्च आउट अबाउट दिस टेम्पल इन पर्टिकुलर और आप देखोगे कि कैसे अपना पॉलिटिकल माइट या मिलिट्री सक्सेस दिखाने के लिए ये जो थे अटैक करते थे, लूट करते थे, स्पेशली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ द डिफीटेड रूलर्स। एंड दिस इज जस्ट टू लाइक शो प्रूव देयर कि हम इनसे ज्यादा सुपीरियर है इस चीज के लिए। और अगर मैं ये डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड टेम्पल्स की बात करूं तो इन द रिसेंट टाइम यू कैन रिलेट इट वेरी मच विद द इंसिडेंट्स विच इज हैपन इन राम मंदिर, राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद थिंग, कि जो एक्लेमेशन हुए, जो प्रूव हुआ है कि अर्लियर इंडियन लैंड पे राम मंदिर था और इन्वेजन्स के बाद आके उसको मॉस्क में कन्वर्ट किया था। ये एक मतलब 700 ईयर्स तक इस केस को फाइट किया गया। जस्ट रीड अबाउट दिस एंड यू कैन रिलेट कि हाउ द इन्वेजर्स हैव लाइक ट्रांसफर्ड द अर्लियर टेम्पल्स इनटू मॉस्क एंड ऑल। सो दिस वॉज, क्योंकि आपको पता है कि मुगल एम्पायर का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, बहुत टाइम तक उन्होंने हमारी कंट्री को रूल किया। और एक चीज इसके अंदर है कि लाइक अंडर द मुगल्स आर्किटेक्ट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, लाइक हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर एंड शाहजहां वाज स्पेशली लाइक पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड बायोग्राफी। और उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ जो थे स्ट्रक्चर्स बनाए, जिसमें सबसे ज्यादा चाचर बाग के लिए 4 टेम्पल्स जिसको कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सिमेट्रिकल डिवीजन होती थी क्वार्टर्स के अंदर और बीच में एक टॉम टाइप उसमें बनाया जाता था। और टॉम की कंस्ट्रक्शन अकबर के टाइम से हुई। उसने जो अपना पुराना तैमूर डायनेस्टी का जो था बीच में सेंटर में एक डोम बनाना, टॉवरिंग डोम, टेल गेट्स वाला, उसने उस चीज को किया था। अदरवाइज अर्लियर जो चाचर बाग बन रहे थे उसमें सिमेट्री 4 क्वार्टर में उसको डिवाइड करके, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर डिवाइड करके, 4 क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड करके और उस बाग को ऐसे लगाया जाता था। यू हैव फिगर लाइक 10 वेयर यू कैन सी। और बाग पे बहुत ज्यादा काम किया है। जितने भी ये मुगल एम्परर्स थे बहुत सुंदर सुंदर उनके पीरियड के बाग जो है कश्मीर तक हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। राइट, सो दिस वाज अबाउट द गार्डन्स। अगर हम डॉम्स की बात करें, हुमायूं डॉम जो था, द टॉम वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चाचर बाग एंड बिल्ड इन द ट्रांजिशन नोन एन 8 पैराडाइज और hushed bished central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. शाहजहां के टाइम पे डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्ट्स वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हार्मोनियस सिंथेसिस। एंड आपके इसके अंदर जब आप देखते हो स्पेशली आगरा और दिल्ली में, तो बहुत सारे आपको ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही केयरफुली प्लान किए गए थे एंड प्लेस विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड्स। दीज कोर्ट्स वर फिल्ड एज चिल सुल्तान या 40 सुतन्स या 40 पिलर्ड हॉल इनको बोलते हैं। इस तरह के हॉल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। इसने बहुत अच्छी अच्छी मॉस्क भी बनाई। एक जो इनका पेडेस्टल था या थ्रोन था, वो फ्रीक्वेंटली उसको किबला, जो कि फेसिंग था डायरेक्शन में जो मुस्लिम्स प्ले करते हैं, पता है ना किबला, हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो मक्का की तरफ फेस डायरेक्शन होती है उसको किबला बोलते हैं, और इस तरह से था। द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज emphasized by शाहजहां। एंड उनका जो थ्रोन था, उसका जो थ्रोन था उसके पीछे उसने लेजेंडरी ग्रीक गॉड
ऑर्फरस जो कि एक ल्यूट प्ले कर रहे हैं वो पीछे रखा था और उसको हम पैट्राडोरा बोलते थे। क्वेश्चन भी है, व्हाट इज लाइक पैट्राडोरा? इट इज अ कलर्ड हार्ड स्टोन प्लेस्ड इन द डिप्रेशन, कर्व्ड इनटू मार्बल पे बना था या सैंडस्टोन पे बना होता था और उसको बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स के साथ सजाया जाता था, राइट और ये जो ग्रीक गॉड के पीछे उसने अपना वो उनको बना रखा था, ये था कि जस्ट टू शो, जस्ट टू कम्युनिकेट दैट द किंग्स जस्टिस वुड बी ट्रीटेड द हाई एंड लो आर इक्वल, क्रिएटिंग द वर्ल्ड वेयर दे ऑल कैन लिव टुगेदर इन हार्मनी, राइट। अर्लियर जो शाहजहां की कैपिटल थी आगरा थी, जहाँ पर नोबेलिटी जो अपने हाउसेस थे वो यमुना नदी के किनारे जो थे वो बनाते थे और दिस काइंड ऑफ उनका भी वही फॉर्मल गार्डन्स, चार बाग ये इसके बन रहे थे वहाँ पे, रिवर फ्रंट गार्डन्स होते थे एंड द ड्वेलिंग वर नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चाचर बाग बट एट द एज क्लॉज टू द बैंक ऑफ रिवर। शाहजहां ने लेटर रिवर फ्रंट गार्डन को अडॉप्ट किया जिसको उसने ताजमहल में यूज किया। ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चरल अकम्पलिशमेंट था, राइट आप सबको पता है कि क्यों बनाया उसने और इस फॉर्म के अंदर उसने मीन था ये कंट्रोल करने का नॉवेल्स को और फिर लेटर ऑन वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली ले गया, सिटी ऑफ शाहजहानाबाद उसने बनाई और उसमें भी ऐसे रिवर फ्रंट उसने पैलेस बनाया। उसमें क्या होता था, नदी के इस पार जो था वो उन्हीं का मेन जो किंग था उसी का एक्सेस था और सिर्फ उसके फेवरेट लोग ही उस तरफ जा सकते थे, जिसमें उसका फेवरेट जो एल्डेस्ट सन था दारा साहब, सिर्फ उसको ही एक्सेस था रिवर का और बाकी जितने भी घर थे वो रिवर से दूर शहर के अंदर बनाए जाते थे। तो ऑन पेज नंबर 70 यू विल सी हाउ द रिवर फ्रंट रिवर गार्डन ऑफ आगरा सिटी, इट इज शो यू द मैप, इट इज अगेन शोइंग यू द मैप ऑफ शाहजहानाबाद, इट इज शोइंग यू द रिवर यमुना रिवर, किस तरह से कैसे पैटर्न था, क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या सोच थी उनकी इस तरह से करने के लिए। दिस इज लाइक we need to understand and after that the intermingling of the architectural forms happened और इसके evidence बहुत सारे हैं in between 8th to 18th century there was a considerable sharing of idea across the regions like एक region का अपना particular architect होता था और 8th to 18th century में हमने देखा कि लोगों ने inspire होना दूसरे regions से वो शुरू कर दिया like in Vijayanagara for example the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architect found in the adjoining sultanates of बीजापुर and गोलकुंडा। इसी तरह वृंदावन में जो कि मथुरा के पास है टेम्पल्स बने उनके अंदर भी मुगल एम्पायर पैलेसेस जैसे फतेहपुर सीकरी थी उसकी छाप थी। The creation of large empires that brought different regions under their rules helped it cross fertilization of artistic forms and architectural style. Mughal rulers were particularly skilled in adopting regional आर्किटेक्चर्स लाइक बंगाल तक से उन्होंने जो बंगाल के लोकल रूल्स का बांग्ला डोम जिसको बोलते हैं वो भी उनको बहुत पसंद था और जब अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी में बनाई तो उसने ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग इन्फ्लुएंस दिखते हैं जो कि गुजरात और मालवा रीजन के अंदर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था उससे इन्फ्लुएंस थे। तो जिस टाइम ये सब हो रहा था हमारी इंडिया के अंदर उस टाइम इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड व्हाट वाज हैपनिंग इन द 12th century फ्रांस वर बिल्डिंग चर्चेज, फ्रांस वाज आल्सो बिल्डिंग into building churches and they were like making taller and lighter buildings than earlier buildings और उनका जो स्टाइल था वो कैथोलिक स्टाइल था जिसके अंदर इट वॉज डिस्टिंग्विश बाय हाई पॉइंटेड आर्च होते थे, स्टेन ग्लास का और ऑफन पेंटेड विद सीन्स थ्रू बाइबल्स थे और फ्लाइंग बटरेस थी इसके अंदर। और इसके अंदर जो एग्जाम्पल इस टाइम का है वो जो चर्च है नोट्रे डोम की पेरिस के अंदर वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सो वी हैव लाइक फिनिश दिस चैप्टर एंड जस्ट गो थ्रू द वीडियो, read the chapter thoroughly. There are many facts which are hidden in this book and this particular chapter and I want you to give it very like deep reading of this chapter. It will be very useful to you in the later studies also and also to understand what kind of architecture was available in our country, how and when the things happen. You can see that आज भी राम जन्मभूमि जैसे मुद्दे उठते हैं, क्यों उठ रहे हैं, you need to understand that. Just focus from that point of view and just give thorough reading of this chapter. That's all for from my end and we have like finished the 5th chapter today with this lecture. Stay safe and stay happy. Bye for now.